Hi, are you a chief follow-up officer who is spending 3 to 4 hours per day on taking follow-ups from employees whether they have done the work or not? If yes, then you need to learn the art of delegation. Hi guys, I'm Kevil Kishan, India's leading business automation coach, and in this video, I'm going to train you how can you master the art of delegation. So make sure you watch this video till end. I'll talk about three things here. Firstly, I'll talk about what are three stages of a business owner. Then I'll talk about what are three steps through which you can delegate any kind of work to your employee. And thirdly, I'll be telling you about the technology through which you can start delegating the work and getting the freedom from daily follow-ups. Now, Michael E. Gerber, the writer of book called E-Myth, he says एक बिजनेस ओनर जब बिजनेस शुरू करता है, जिसे जब स्टार्टअप बोलते हैं, उस बिजनेस के ना 3 स्टेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, आप एक ट्रेडर या रिटेलर हो सकते हैं. हम बिजनेस को बड़ी मोटिवेशन से, अपने पैशन से शुरू करते हैं, बट वो हम पहली स्टेज पे होते हैं जब बिजनेस शुरू करते हैं. दैट फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड टेक्नीशियन, where we are good at our technical work, we are good at our operational work, right? But we are not great at running the business, we are not good with sales, we are not good with accounts. So जब initial stage पे होते हैं, what we do, we are really good with our operations, and because of which we start getting few orders, we start delivering the work, and then we feel that we are getting too busy in delivering the work. Let me hire few teammates so that I can manage them and they can do this technical work. So that brings us to the second stage, that is called manager. जब business owner को लगता है कि यार मैं अकेले इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, तो then the person hire few people and that stage is called manager. Now you might be at a stage where you have few employees and you actually might be at a managerial stage, जहाँ पे आप उनको मैनेज कर रहे हो, बट रियलिटी इज आपका पूरा का पूरा दिन शायद उनको मैनेज करने में चला जाता हो. यस और नो? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, कितने घंटे आप डेली लगाते हैं अपने बिजनेस में, अपनी टीम को मैनेज करने में, अपने क्लाइंट्स को मैनेज करने में और अपने वेंडर्स को मैनेज करने में. नाउ व्हेन यू आर एट द सेकंड स्टेज व्हिच इज कॉल्ड मैनेजर, यू आर जस्ट मैनेजिंग द बिजनेस बट यू आर नॉट ग्रोइंग योर बिजनेस. ये वो स्टेज होती है जहाँ पे एक स्मार्ट बिजनेस ओनर को समझ आ जाता है दैट नाउ आई हैव माय टीम, I need to automate my operations so that my systems and my employees can run the back end and I can think of growth of my business. And that brings us to third stage, my friend, and that is called entrepreneur. That is the stage. Now the reality is most of us are technicians, but we are thinking we are an entrepreneur. And it was the same case with me as well. When I started my entrepreneurship career, I was alone. I was handling few clients and I used to work 12 to 14 hours, but I could not grow my business. And I thought to grow my business, I should hire more employees. I ended up hiring, more than 10 employees in a span of 6 months. But I thought now this is the way to grow my business. But what happened? I ended up becoming a manager. जितना टाइम मैं अपने काम को देता था, उससे ज़्यादा टाइम मुझे अपनी टीम को मैनेज करने में लगाना पड़ा. And that is where I became chief follow-up officer. ऐसा पर्सन काम दे रहा है, फिर फॉलोअप ले रहा है, काम दे रहा है, फॉलोअप ले रहा है, और अपने ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है, बट अपने बिजनेस में सेल्स नहीं ला पा रहा है, बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पा रहा है. एंड दैट वाज अ स्टेज व्हेन आई स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट्स एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन. एंड व्हेन आई ऑटोमेटेड माय बिजनेस, आई एक्चुअली वेंट टू द थर्ड स्टेज व्हिच इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. नाउ आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट एंड टेल मी, आप अभी कौन से स्टेज पे हो? आर यू एट अ टेक्नीशियन स्टेज, अ मैनेजर स्टेज और एन एंटरप्रेन्योर स्टेज? Let me tell you, 90% of the business owners are at technician and manager stage, and they can never go to the third stage until unless they automate their task delegation and they get rid out of day-to-day follow-ups. अब क्वेश्चन उठता है कि हमें अपनी टीम को काम डेलीगेट करना है, बट क्या हम कॉल पे करें? उनको मीटिंग में बुला के काम लिखवाएं डायरी पे? आप कॉल पे करोगे, आपकी टीम डायरी पे लिख लेगी, या आप सामने मीटिंग में बुलाया, आपने काम एक्सप्लेन किया, बट रियलिटी इज डायरीज या एक्सेल फाइल्स आपकी टीम को रिमाइंड नहीं कराएगी ऑफ द डेडलाइन ऑफ द टास्क दैट इज गिवन टू देम. और इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि केवल हम टास्क तो डेलीगेट करना चाहते हैं, बट मेरी टीम वो अच्छा काम करवाएगी या नहीं कर पाएगी. तो उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, विच इफ यू फॉलो यू कैन डेलीगेट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी टू योर एम्प्लॉइज. सो द फर्स्ट स्टेप इज
whenever you want to delegate any particular type of activity which you are doing but you want to delegate, आप अपने टीममेट को बुलाइए, उसको अपने साथ बिठाइए, and while you're doing the work, let him or her observe how you are doing it. Second step, whenever you want to do it again, invite your teammate and ask them to do it, and you see on how they are doing it. So पहले आपने काम किया, उन्होंने देखा, फिर अब वो काम करेंगे और आप देखेंगे. ये second step हो गया. And third step is, once they are getting the confident, let them do it, and then take a report after they complete the work, and then take the feedback and give the guidance. अगर आप 3 steps को follow करेंगे तो आप किसी भी टाइम का काम अपनी टीम को दे सकते हैं. You know, initially मुझे लगता था कि मेरी टीम सेल्स नहीं कर सकती, मेरी टीम मार्केटिंग नहीं कर सकती, मेरी टीम क्लाइंट को सपोर्ट नहीं दे सकती, बट मैंने ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज़ किया और आज के टाइम पे 95% ऑफ माई टाइम इज गोइंग इन ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज, और 5% टाइम जाता है बस बिजनेस और टीम को मैनेज करने में. बट पहले ऐसा नहीं था. पहले मेरा 90% टाइम यूज टू गो इन मैनेजिंग द टीम, डूइंग माई मैनेजरियल वर्क विच इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. So are you guys clear with this 3-step formula? Now let's talk about the technology. क्या सिस्टम यूज करें so that आप अपने टीम को जब काम असाइन करो, they should get some reminders and you should analyze their report on how they are performing, क्या काम पेंडिंग है, क्या काम completed है. So उसके लिए आपको एक सिस्टम रिक्वायर्ड है जिसका नाम है टास्क डेलीगेशन सिस्टम. अभी आप अपने फ़ोन से टास्क डेलीगेट कर रहे हो, व्हाट्सएप से कर रहे हो, काम तो आपने दे दिया बट उन्होंने किया या नहीं किया वो आपको पता नहीं. और ऐसा हो सकता है कि आप वो काम दे के भूल गए और वो भी भूल गए, और जब डेडलाइन आई आपने स्टेटस पूछा, एंड गेस व्हाट, योर टीम इट इज कमिंग विद वन एक्सक्यूज और अदर, राइट. तो आप चीफ फॉलोअप ऑफिसर बन के रह गए और आपकी टीम चीफ एक्सक्यूजेज ऑफिसर बन के रह गई. यस और नो? सो ये जो टास्क डेलीगेशन टूल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए स्क्रीन पे देखिए 3-4 चीज़ें जो आपके काम आएंगी. सबसे पहले एक टास्क डेलीगेशन फॉर्म है, ये आपके मोबाइल पे आ जाएगा एज अ शॉर्टकट. आपको किसी को काम देना है, यू जस्ट ओपन द टास्क डेलीगेशन फॉर्म, राइट द टास्क, चूज द डेडलाइन, चूज द टीममेट जिसको आपको काम देना है, राइट, एंड टेल द प्रायोरिटी, इज इट अर्जेंट, मीडियम और लो, एंड यू क्लिक ऑन सबमिट. जैसे आपने मोबाइल से गूगल फॉर्म फिल किया टास्क डेलीगेशन का, योर टीममेट विल गेट एन ईमेल एज वेल एज अ व्हाट्सएप. बट नाउ यू आर वंडरिंग, केवल आज काम दे दिया तो कल भी तो रिमाइंड कराना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट डे योर टीममेट विल गेट अ पीडीएफ ऑन द व्हाट्सएप जिसमें वो सारे कामों की लिस्ट होगी जो आपने आज तक उन्हें दिए हैं बट अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं किए. Sorted? So next day you do not need to take the follow-up. Let WhatsApp take the follow-up. Let email take the follow-up. Let system take the follow-up. And at the last, now you're saying केवल उन्होंने follow-up system में ले लिया, पर मुझे कैसे पता चलेगा काम हुआ या नहीं हुआ? So जैसे ही आपका टीममेट अपने टास्क अपडेट फॉर्म पे काम कंप्लीट करेगा, आपको WhatsApp आ जाएगा. बट आप जब इस सिस्टम को यूज करना शुरू करोगे, आप 1, 2, 5, 10, 100, 1000 टास्क देने शुरू कर दोगे और वहां पे आ जाता है टीम परफॉर्मेंस एनालिसिस. सो दिस टास्क डेलीगेशन टूल कम्स विद अ टीम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एज वेल, वेयर यू कैन एनालाइज हाउ मेनी टास्क आर कंप्लीटेड, हाउ मेनी आर पेंडिंग, हाउ मेनी आर ओवरड्यू, कौन कौन से काम है अभी जो पेंडिंग है, किस टीममेट की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टूल, I started saving 4 to 5 hours per day. And this has been the same story with 4,000 plus business owners who have taken my advice and implemented it. And this is how you master the art of delegation. Understanding 3 stages of a business. Right now you might be a technician or manager, right? Then follow 3-step formula. किसी को काम समझाना है तो पहले खुद करके दिखाओ, फिर उसे करने दो और आप देखो, और फिर उसे खुद करने दो और बाद में रिपोर्ट लो. और जो भी आपको काम देना है उसको दो थ्रू टास्क डेलीगेशन टूल. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे करें. सो फॉर दैट दिस वीक आई एम कंडक्टिंग अ बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास. एक 2 hours की मास्टर क्लास है जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ऑन हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ डेली फॉलो अप एंड हाउ यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ चीफ फॉलो अप ऑफिसर टू अ चीफ ग्रोथ ऑफिसर. बिकॉज चॉइस आपकी है. 2023 को अपनी टीम से फॉलो अप करके वेस्ट करना है, अपनी टीम से फायर फाइटिंग करके वेस्ट करना है, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करके अपने नेक्स्ट ईयर को सक्सेसफुल बनाना है. इफ यू आर इन दैट कैटेगरी,
then you can check out in the description, एक link आपको मिल जाएगा. Join this masterclass and let me help you implement task delegation and other systems and help you become a system-driven business owner. Now I'll summarize this video by just telling you one thing. I have been into entrepreneurship past 10 years and first 5 years were full of struggle. You know why? Because I was wasting all my time in operations, in follow-ups, because I had no systems at all. And I used to believe that more work I will do, I will grow. So I used to believe in hard work. And I was, my mindset was closed. I thought I know everything. I can just go to some random videos and learn things. But then I realized that I'm actually a technician. And if I need to become an entrepreneur, I need to systemize my business. And once I started automating it, now we are present in 15 countries, helping business owners also to get the freedom from firefighting, just like I got the freedom. So the call is yours. Either keep firefighting in your business in year 2023 or automate it and scale your business to 10x level. With that, let me wrap up today's video. If you like this video, make sure you hit the subscribe button because I'm really working hard to help you upgrade your business. Click on the bell icon, like the video, and अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो भी अपनी टीम को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहा है, वो भी अपनी फैमिली ट्रिप्स में जाता है और टीम पीछे से कॉल करती है, उसको भी समझ नहीं आता है कि मैं अपनी टीम को कैसे मैनेज करूं, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो. बिकॉज आपकी ये वीडियो शेयरिंग उनकी लाइफ चेंज कर सकती है. दे कैन ऑल्सो कम इन माई बिजनेस ऑटोमेशन मास्टर क्लास. टिल देन, keep learning, keep automating and keep growing your business. Signing off, Keval Kishan. Take care.